Assalamu alaikum, my dear students. On the behalf of Gerizan Academy Senior Campus Kushawalaken, I am Muhammad Shahidul Islam, your math teacher. Dear students, today we solve question number 4 of exercise 10.1. Question number 4 is important for annual exam. We take part number 1. This is very important. Prove that. Take left hand side. Sine square pi plus theta tan 3 pi by 2 plus theta over cos square 3 pi by 2 minus theta and cos square pi minus theta and cosecant 2 pi minus theta. Okay, very easy. First of all, we find each trigonometric function separately. First of all, here sine square pi plus theta. हम इसको सॉल्व करते हैं. This is horizontal line angle pi 180 angle है. This is horizontal line angle. According to previous lecture, horizontal line angle when horizontal line angle is present in any trigonometric function, then trigonometric function remains same. So it can be written as sine theta. Basic angle is theta. Okay, and angle is in present is in pi plus theta. It is third quadrant. Okay, so in third quadrant the value of sine is negative, so minus sine theta whole square, क्योंकि ये होल स्क्वायर है. क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल साइन एसिड आएगा और ये बेसिक थीटा आपके पास, और ये एंगल जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस 180 प्लस जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है नेगेटिव. ओके, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा आएगा और होल स्क्वायर. अब इसको सॉल्व कर लें. ओपन द स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा. ओके, सिमिलरली we take tan theta, tan of 3 pi by 2 plus theta. अब 3 pi by 2 जो है this is 270 degree. Clear? Vertical line angle. When vertical line angle is present in any trigonometric function, then trigonometric function will change. ठीक है, इनको ratios. तो tan जो है वो cot में change होता है. Okay, so it can be written as cot theta. And this angle lies in 3 pi by 2 plus fourth quadrant. In 270 plus क्या fourth quadrant. तो fourth quadrant में tan क्या होता है negative, so it is negative cot. Next, cot square 3 pi by 2 minus theta. Similar to 270 vertical line angle, cot will change into tan. So this can be written as tan of theta. Angle lies in third quadrant because 270 minus third quadrant में. क्लियर. तो थर्ड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है पॉजिटिव. tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, और ऊपर इसका क्या है होल स्क्वायर. तो होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये tan स्क्वायर आपके पास आ जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट है cos स्क्वायर. सेपरेटली हर एक की वैल्यू आप फाइंड करेंगे इजीली, वेरी इजी. आपके पास हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन एंगल प्रेजेंट बने हुए हैं, बनाने की जरूरत भी नहीं है. दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल 180 है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल हो तो आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रिमेन सेम. ओके, सो cos theta is as it. Angle is in pi minus 180 minus second quadrant where cos is negative, and taking whole square, open the square, it is cos square theta. Okay, and the loss value of cosecant 2 pi minus theta. अब 2 pi 360 एंगल है. 360 is horizontal line angle. Horizontal angle present हो तो आप cosecant
जो फंक्शन है वो रिमेन सेम होगा। तो कोसेकेंट थीटा आपके पास आ जाएगा, कोसेकेंट थीटा। एंड एंगल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस बैक पे, यानी प्रीवियस 360 से प्रीवियस क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास ये एंगल है, तो वहां पे कोसेकेंट क्या होता है, नेगेटिव, सो इट इज नेगेटिव कोसेकेंट। ओके, ऑल दीस वैल्यूज पुट इन लेफ्ट हैंड साइड and then simplify and we get answer. Okay, putting values in left hand side. First value is sin square minus cot and then so on. Sin square theta multiply tan की वैल्यू क्या है, माइनस कॉट थीटा ओवर नेक्स्ट कॉट स्क्वायर की वैल्यू tan स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा एंड नेक्स्ट माइनस कोसेकेंट। ओके, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग इज, सो दिस कैन रिटन एज sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई cos बाय sin। cot का फॉर्मूला, अब इसको ओपन कर देंगे, tan का फॉर्मूला sin बटा cos, तो इट इज sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर मल्टीप्लाई cos स्क्वायर एंड कोसेकेंट का फॉर्मूला 1 बाय sin थीटा। ओके, कटिंग cos स्क्वायर से कट गया, ये साइन एक साइन से कट गया, क्लियर, और ये साइन एक साइन से कैंसिल और ये साइन इस साइन से कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू इज cos थीटा, इट इज राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसके दो पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, वेरी इजी, वहां पे भी आपको ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल प्रेजेंट गिवन है, तो इजीली आप उसको कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट, ये 4 पार्ट है, एनी 2 पार्ट्स हम करते हैं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल then alpha beta gamma चूंकि ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, यू नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब ये स्टेटमेंट आप यूज करेंगे हर पार्ट के अंदर। ओके, और फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने फाइंड प्रूव करना है आपने कि sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू sin गामा। तो अल्फा प्लस बीटा को आप लेफ्ट साइड पे रखें, गामा को आप राइट साइड पे ले लें। So it can be written as alpha plus beta is equal to 180 degree minus gamma। इसको 1 का नेम दे दें। ओके, अब पार्ट नंबर 1 पे आने आपने प्रूव करना है कि sin अल्फा प्लस बीटा is equal to sin gamma। तो sin अप्लाई करते हैं, taking sin on both sides, applying sin on both sides, sin अल्फा प्लस बीटा is equal to sin 180 डिग्री माइनस gamma। बोथ साइड आपने लेफ्ट और राइट साइन अप्लाई कर दिया। अब ये आपका क्वेश्चन है जो आपने प्रूव करना है, और राइट साइड आप इसको सॉल्व करेंगे जस्ट। तो राइट साइड में आप देखें, ये आपके पास 180 डिग्री, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल क्या करता है, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिमेन सेम रखता है। ओके, सो साइन गामा आपके पास आ गया, और एंगल किस क्वाड्रेंट में 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव साइन गामा, दिस इज प्रूव्ड। ये आपने लेफ्ट और राइट प्रूव करने, क्लियर। ये साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, साइन गामा के, क्लियर। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में आपने प्रूव करना है tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गामा इज इक्वल टू 0, यानी आपने tan अप्लाई कर देना बोथ साइड। जहां पे आपने यहां पे साइन अप्लाई किया है, तो अब आपने क्या करना है, इसी कोई नंबर 1 को आप लेंगे
और इसके बोथ साइड आप साइन को अप्लाई कर देंगे। ओके, सो फ्रॉम 1 अल्फा प्लस बीटा is equal to 180 degree minus gamma. Applying tan on both sides. Tan of alpha plus beta is equal to tan of 180 degree minus gamma. Okay? अब जस्ट राइट साइड को सॉल्व करेंगे आप। लेफ्ट साइड आपका क्वेश्चन है, राइट साइड को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन सेम, तो tan gamma आपके पास आ जाएगा। tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan gamma। ओके, अब ये एंगल किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल हो और तो tan की वैल्यू क्या होगी? वेयर tan इज नेगेटिव। ओके, तो इट इज माइनस tan gamma। दिस वैल्यू शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, इट इज पॉजिटिव, सो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस tan gamma is equal to 0. This is proved. Okay, ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं, कुछ न्यू फॉर्मूलाज हम डिडक्ट करते हैं और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? ऑलरेडी आपने ये एंगल्स ड्राइव कर चुके हैं, यानी दोज एंगल्स which associated with basic angle theta to right angle and are its multiples। यानी बेसिक एंगल जब राइट एंगल के साथ या उसके मल्टीपल के साथ, राइट एंगल में 90 का मल्टीपल कौन है? 180, 270 या 360। जब बेसिक एंगल थीटा राइट एंगल या उसके मल्टीपल के साथ एसोसिएट करता है, क्लियर, रिटर्न इन पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस या माइनस में रिटर्न होता है, तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। ओके, लाइक 90 प्लस माइनस थीटा 90 डिग्री एंड 180 प्लस माइनस थीटा, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। तो दिस थीटा इज द बेसिक एंगल। बेसिक एंगल के साथ क्या 90 आ गए या उसका मल्टीपल आ रहा है, तो 270 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा। These angles are called allied angles। allied का मतलब क्या होता है? इत्तेहाद करना, ज्वाइन कर लेना, एसोसिएट कर ले, किसी के साथ एसोसिएट हो जाना। तो बेसिक एंगल जब 90 के साथ या उसके मल्टीपल एंगल के साथ एसोसिएट हो जाता है तो वो अलाइड एंगल्स बना देते हैं। ओके, तो ये आपने 4 टाइप के अलाइड एंगल्स ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिए हुए। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट न्यू फॉर्मूलाज हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। इससे पहले आपने 2 फॉर्मूलाज प्रोड्यूस किए। नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वो फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन सा फॉर्मूला है? नंबर 1 cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ओके, अब नंबर 2 फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, इसी में बीटा की प्लेस पे आपने माइनस बीटा पुट किया था, तो ये प्लस का फॉर्मूला आपके पास क्रिएट हो गया था। तो cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। इट इज sin अल्फा sin बीटा। ओके, ये 2 फॉर्मूलाज आपने ड्राइव किए। अब हम 2 फॉर्मूला साइन के ड्राइव करते हैं, यानी cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा, ये 2 फॉर्मूलाज आपने ड्राइव कर ली। ओके, अब 2 नेक्स्ट फॉर्मूलाज हम ड्राइव करते हैं साइन के, फिर 2 फॉर्मूलाज हम ड्राइव करेंगे किसके? tan के। ओके, तो ये 6 फॉर्मूलाज हैं जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे। ओके, तो इसी फॉर्मूला के अंदर आप कुछ पुट करते हैं जिससे एक नया फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा आपके पास। आप जस्ट यहां पे पुट करते हैं इस फॉर्मूला के अंदर, फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 2 पुट अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की प्लेस पे आप पुट कर दें पाई बाय 2 प्लस अल्फा, पुट कर दें हम। क्लियर? कि जहां पे अल्फा है लेफ्ट और राइट, इनकी प्लेस पे आपने क्या पुट करना है? 90 प्लस अल्फा, पाई बाय 2 में 90 पुट करेंगे। देन तो नया फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा? cos पाई बाय 2 प्लस अल्फा
प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब इस अल्फा की प्लेस पे ये पुट कर दिया, आगे क्या आ गया बीटा एसिड, और राइट साइड पे आप पुट कर दें cos पाई बाय 2 प्लस अल्फा cos बीटा और माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा इंटू साइन बीटा। ओके, अब जहां पे हमारे पास अल्फा था फॉर्मूला नंबर 2 के अंदर, वहां पे आपने ये डिडक्शन कर दिया आपने अल्फा की प्लेस पे पाई बाय 2 प्लस अल्फा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा cos पाई बाय 2 प्लस, अब ये जो दो एंगल है इनको आप एक ब्रैकेट में ले लें अल्फा प्लस बीटा, यानी आप थीटा ये समझ लें आप लोग, तो ये आपके पास ये वैल्यू बन गई, यानी ये आपके पास क्या बन जाएगा अल्फा और ये क्या बन जाएगा बीटा, ये दो एंगल आपके पास आ गए, इन दो एंगल को एक एंगल बना लें आप लोग, दिस कैन बी रिटन एज। अब नेक्स्ट आप ये सॉल्व करें पाई बाय 2 प्लस अल्फा, पाई बाय 2 90 एंगल है, वर्टिकल लाइन एंगल हो तो cos को साइन में कन्वर्ट करते हैं, सो दिस इज साइन अल्फा। अब क्वाड्रेंट कौन से पाई बाय 2 प्लस अल्फा, इट में ये सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट वेयर cos इज नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव इनटू cos बीटा माइनस, अब यहां पे ये भी आपके पास वर्टिकल लाइन एंगल, तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा cos के अंदर। ओके, तो क्वाड्रेंट कौन सा है पाई बाय 2 प्लस सेकंड, सेकंड में साइन की वैल्यू क्या थी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ओके, तो ये क्या आ जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा, क्योंकि वर्टिकल लाइन है साइन cos में चेंज हो जाएगा और साथ क्या आ जाएगा अल्फा, और आगे क्या है साइन बीटा। ओके, अब ये आपके पास जो लेफ्ट साइड है इसको सॉल्व करें, ये समझे आपके पास 90 एंगल वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन एंगल फंक्शन को चेंज करेगा, cos साइन में चेंज हो जाएगा, और उसके साथ बेसिक एंगल कौन है अल्फा प्लस बीटा, ये साइन के साथ आ जाएगा। ओके, सो दिस विल कन्वर्ट इनटू साइन, तो साइन बेसिक एंगल अल्फा प्लस बीटा, यानी जो वर्टिकल लाइन एंगल के आगे एंगल होता है वो बेसिक कहलाता है, वो यहां पे आंसर में आता है। ओके, और दूसरी बात कि ये पाई बाय 2 प्लस आपके पास है, तो 90 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा आ गया सेकंड, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो दिस इज माइनस, अब माइनस को कॉमन ले लें आप लोग, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, बोथ साइड माइनस को आप कैंसिल कर दें तो रिमेनिंग एक फॉर्मूला आपके पास क्रिएट हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा और प्लस cos अल्फा साइन बीटा, ये थर्ड फॉर्मूला आपके पास क्रिएट हो गया साइन। क्लियर? अब इसी साइन के फॉर्मूला में अगर आप बीटा की प्लेस पे माइनस बीटा पुट कर देते हैं तो ये फॉर्मूला प्लस का जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यानी पुट कर दें आप बीटा की प्लेस पे माइनस बीटा, तो वी गेट साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा इज इक्वल टू, जहां जहां बीटा माइनस बीटा पुट करते हैं हम, तो साइन अल्फा cos माइनस बीटा प्लस cos अल्फा साइन माइनस बीटा। ओके, अब ये साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos, चूंकि इवन फंक्शन है उसका नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और साइन चूंकि ऑड फंक्शन है इसका नेगेटिव बाहर आ जाता है, नेगेटिव नेगेटिव रहता है, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस प्लस माइनस बना देगा, सो दिस कैन बी रिटन एज cos पॉजिटिव बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, दिस इज अ न्यू फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4। ये 4 फॉर्मूला आपके पास क्लियर, दो cos के प्लस और माइनस और दो साइन के प्लस और माइनस के आपके पास, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब ये दो cos के हैं, इसमें क्या पॉइंट है जो आप इसको सेव करेंगे कि cos का फॉर्मूला जब ओपन करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस या माइनस से बिफोर और आफ्टर सेम आते हैं,
यानी ये देखिए दोनों कॉस है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और प्लस के बाद भी क्या है, दोनों साइन, यानी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं यहाँ पे। बट जो साइन का फॉर्मूला है, प्लस है तो प्लस है, और अगर माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस है, उसमें माइनस है तो प्लस है और प्लस है तो माइनस है। और दूसरी चीज चेंज क्या हो रही है इसमें, साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक कॉस है और एक कॉस और एक साइन, इस तरह आप इसको सेव कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट we produce a formula tan alpha plus beta and tan alpha minus beta. Okay, as tan alpha plus beta। अब ये फॉर्मूला हमने इसका फॉर्मूला बनाना है, क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आपके पास है sin alpha plus beta और ये फॉर्मूला आपके पास है sin alpha minus beta। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला आप बनाना चाहते हैं तो ये tan alpha plus beta इक्वल होता है sin बटा cos। अब इसको जरा ओपन करके फॉर्मूले में लिख लें, ये tan alpha plus tan इक्वल होता है sin बटा cos के, जो इसका एंगल होगा वही इसका एंगल होगा। एक्चुअली हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो tan का फॉर्मूला tan की शेप में आएगा। अब अभी तो ये sin बटा cos की शेप में आया, अब tan की शेप में लाने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करते हैं और इसकी वैल्यू भी पुट करते हैं। sin alpha plus beta की वैल्यू ये sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta, और cos alpha plus beta की वैल्यू ये फॉर्मूला नंबर 2 है। पुटिंग these two values, sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta over cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta। ओके, अब हमने क्या करना है, अप एंड डाउन आपने डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय cos alpha cos beta। cos alpha cos beta पे अप एंड डाउन ईच टर्म को आप डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन तमाम वैल्यूज को आप डिवाइड कर दें। ओके, इसको आप डिवाइड करें sin alpha cos beta डिवाइड बाय cos alpha cos beta प्लस cos alpha sin beta ओवर cos alpha cos beta। डाउन में आ जाए, cos alpha cos beta माइनस sin alpha sin beta ओवर cos alpha cos beta। ओके, अब इसको सिंपलीफाई करें हम, ये cos beta से कैंसिल, cos alpha से कैंसिल, ये बोथ कैंसिल हो गया, आपके पास ये 1 आ जाएगा और कटता नहीं है, तो ये sin बटा cos, इट इज tan alpha प्लस sin बटा cos beta की शेप में तो tan beta आ गया आपके पास, ओवर ये 1 माइनस sin बटा cos tan, sin बटा cos tan, तो tan अल्फा tan बीटा। तो ये आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया tan अल्फा प्लस बीटा का। ओके, फॉर्मूला नंबर 5 ये, तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। सिमिलरली अगर आप इसका माइनस का बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे बीटा की जगह माइनस बीटा पुट किया आपने, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, बीटा की प्लेस में माइनस बीटा पुट कर लेंगे। तो चूंकि tan ऑड फंक्शन होता है वो, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसका माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास, फॉर्मूला नंबर 6 tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ये फॉर्मूला नंबर 6 है। ये टोटल 6 फॉर्मूलाज हैं जो मैंने प्रूव कर दिए, और ये आप इसको सेव कीजिएगा और लर्न कीजिएगा और इसको मैक्सिमम टाइम रिटर्न करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर है? तो these are very important formulas, these are basic formulas that we use next exercise, in next exercise, next chapters. Okay, this is very important। तो ये 6 formulas हैं, 2 class के,
और दो साइन के और दो क्या है टेन के फॉर्मूलाज हैं। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप लर्न कीजिएगा। Now we start exercise 10.2 question number 1। अब 6 formulas अभी आपने रिटर्न किए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सरसाइज जस्ट उन formulas की रेसल है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी जस्ट यही है कि आप इन formulas की रेसल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव करना है लेफ्ट को, तो राइट आपका आंसर आना चाहिए। वेरी इजी। एक दो पार्ट हम करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 है टेक लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव दैट sin 180 डिग्री प्लस थीटा, तो कहते प्रूव करें इसका आंसर माइनस थीटा आता है। ओके जी, स्टूडेंट्स साइन दिस इज 180 डिग्री इज अल्फा एंड थीटा इज बीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। और इसको आप फॉर्मूलास को याद भी कीजिएगा, और ये फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे आप यहां पे इसको ओपन नहीं कर सकते। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैं यहां पे रिटर्न करता हूं, एस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पे साइन क्या कहते हैं, दो एंगल होते हैं, पहले एंगल को अल्फा कहना है, दूसरे को बीटा, और ये आपने राइट साइड के अकॉर्डिंग पुट कर देना, ओपन कर देना आपने। नाउ साइन अल्फा क्या 180, साइन 180 डिग्री cos थीटा प्लस cos 180 डिग्री साइन थीटा। ओके, और यहां पे टू वैल्यूज है, उनको ओपन कीजिएगा कैलकुलेटर से, साइन 180 की वैल्यू और cos 180 की वैल्यू। तो साइन 180 की वैल्यू 0, cos 180 की वैल्यू -1। ओके, पुटिंग दीस टू वैल्यूज, तो ये क्या आ जाएगा 0 into cos थीटा प्लस -1 into sin थीटा। ओके, तो सो दिस इज 0, सो इट इज माइनस sin थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरी इजी भाई, ये आपके पास आंसर आ गया कि ये प्रूव करना था माइनस sin थीटा थी। ओके, तो एक और पार्ट हम करते हैं, यहां पे पार्ट नंबर 3 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद कीजिएगा, जस्ट फॉर्मूलास की रेसल है। पार्ट नंबर 3 लेफ्ट हैंड साइड tan 270 डिग्री माइनस थीटा। और ये वह पार्ट है कि डायरेक्ट आप इसको अगर ओपन करते हैं तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा और इसका आंसर राइट नहीं आएगा। राइट आपका आंसर क्वाड में आना चाहिए, तो क्वाड नहीं आएगा। ये tan का फॉर्मूला ओपन कर दे, tan अल्फा माइनस बीटा, तो इससे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? tan 270 की वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करोगे तो वो मैथ एरर यानी अनडिफाइंड आ जाएगा, इनफिनिटी, कोई आंसर नहीं होता। क्लियर? तो इसको किसी और वे में आप लोग जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक जगह पे जाना हो, अगर एक रास्ता बंद है तो उसके कोई और भी वे होते हैं, कोई और भी रास्ते होते हैं जहां से आप उस टारगेट तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो अब नया जो है ना वे हम यूज करते हैं, यहां पे tan का डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन नहीं करेंगे, तो tan को लिख लेते हैं sin बटा cos। ओके, अब ऊपर साइन का फॉर्मूला ओपन करें, sin अल्फा माइनस बीटा, और नीचे cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन कर दें और आपका आंसर राइट साइड आ जाएगा। ओके, साइन का फॉर्मूला sin अल्फा माइनस बीटा, sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा ओवर cos का फॉर्मूला क्या है, cos अल्फा cos बीटा, माइनस है तो प्लस आएगा cos के फॉर्मूला में, sin अल्फा sin बीटा। ओके, तो अल्फा यहां पे 270 है और बीटा यहां पे थीटा है आपके पास। ठीक है, ओके, तो अब ये वैल्यूज ओपन कर लें। sin 270 की वैल्यू -1 है इनटू cos ऑफ थीटा, cos 270 की वैल्यू 0 है इनटू sin ऑफ थीटा, cos 270 0, sin 270 -1, okay, it is minus cos minus 0 over क्या आ जाएगा 0 minus sin, so this is minus cos
ओवर माइनस साइन, तो माइनस माइनस से कैंसिल, दिस इज cos beta sin is equal to cot, it is right hand side. Okay everybody, next question number 2, find the values of the following. साइन 15 है, एक एंगल 15 यूज किया और एक एंगल 105, तो आपने जस्ट 15 को सम ऑफ टू एंगल या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एंगल में रिटर्न करेंगे। सिमिलरली 105 को भी आप दो एंगल के सम में रिटर्न करेंगे, तो आपके पास अल्फा और बीटा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टम पार्ट नंबर सेकंड करता हूं, cos 15 डिग्री, तो 15 की प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं, for 15 is equal to 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। ओके, पुट करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा cos 30 डिग्री, यानी आपने फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूले में क्या है, cos के आगे एक अल्फा होना चाहिए और एक बीटा होना चाहिए, तो यहाँ पे 45 ये अल्फा आ गया और 30 आपके पास जो है वो बीटा हो गया। अब ये फॉर्मूला ओपन कर देंगे, cos अल्फा cos बीटा, cos 45 cos 30 माइनस है तो प्लस sin 45 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। ओके, ये आपके पास आ गया, cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। अब इनकी वैल्यूज ओपन कर लें हम, cos 45 1/2, sin cos 30 रेडिकल 3/2 और sin 45 1/2 रेडिकल और sin 30 1/2। ओके, so this is radical 3/2 and 2 radical और 1/2 and 2 radical। ओके, अब आप इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 2 and 2 radical, तो radical 3 plus 1, this is your answer, this is the value of cos 15। ओके, एक पार्ट हम 105 का कर लेते हैं, लास्ट पार्ट 6 पार्ट आप देख लीजिएगा। 105 डिग्री। ओके, पुट अप कर लें, 105 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 60 और 45 105 के इक्वल होते हैं, तो आप पुट कर दें, तो इस तरह आपके पास 10 के आगे दो एंगल बनेंगे जो कि अल्फा और बीटा कहलाएंगे। ओके, तो 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहां पे ओपन करें, 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। ओके, अब ये वैल्यूज आप ओपन कर लें कैलकुलेटर के साथ, 10 60 की वैल्यू रेडिकल 3 है प्लस 10 45 की वैल्यू 1, 1 माइनस 10 60 रेडिकल 3 और 10 45 1 है, सो इट कैन बी रिटन एज 1 plus radical 3 over 1 minus radical 3, this is your answer। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, आज के लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी, एक पार्ट हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, टेक लेफ्ट हैंड साइड, वेरी इजी क्वेश्चन, sin 45 डिग्री प्लस अल्फा, फिर सॉल्व करें और राइट साइड इसका आंसर आना चाहिए। तो जस्ट ये फॉर्मूला ओपन करेंगे आप, sin अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट एंगल अल्फा है, सेकंड एंगल बीटा है, आप अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ओपन कर दें, तो sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। ओके, मैं फर्स्ट एंगल को अल्फा कॉल कर रहा हूं, सेकंड एंगल को बीटा कॉल कर रहा हूं। ओके, आप इनकी वैल्यूज ओपन कर लें बोथ, तो sin 45 1/2 रेडिकल और cos 45 आल्सो 1/2 रेडिकल और sin अल्फा, तो टेकिंग कॉमन एज 1/2 रेडिकल, तो वैल्यू आपके पास cos अल्फा प्लस sin अल्फा, इट इज राइट हैंड साइड। ओके, सेकंड पार्ट आप खुद कीजिएगा और रिमेनिंग जितने भी पार्ट एक्सरसाइज 10.2 के नंबर 1, 2 and 3 रिमेनिंग पार्ट्स आप उसको सॉल्व कीजिएगा, स्पेशली इसके जो 6 फॉर्मूलाज है उसकी मैक्सिमम टाइम आप रिवीन करें, बल्कि आप उसकी असाइनमेंट बना के मुझे आप 6 फॉर्मूलाज की सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।